Hello, good morning, children. How are you? I hope you are fine. So, what we have discussed our three chapters. And next is number 4, a truly beautiful mind. Got it? Then, chapter number 4 is a truly beautiful mind. Can you make in your mind about what and about whom we are going to discuss? The world's greatest scientist, Albert Einstein, whom we are going to discuss, about whom we are going to discuss. Okay now, so before I would tell you something that Einstein की कुछ चीज़ें that will also surprise the readers when we came to know, when I came to know that I was also surprised कि किस तरीके से that was abnormal child, normal नहीं था वो, according to the parent, according to the viewers, according to the teachers, थोड़ा सा अजीब था एल्बर्ट आइंस्टाइन. Got it? So I'm just going to start, not taking too much time. We shall now read about a young German civil servant. जर्मनी से बिलोंग करता था, बिलोंग करते थे वो. Who took the world by storm about 100 years ago, जिसने पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज किया था 100 साल पहले. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession for groundbreaking papers about light, the motion of particles, that is related to our science. लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में पूरे वर्ल्ड को सेंसेशन में ला दिया था. द electrochemics of moving bodies and energy, his work took up 5 pages in scientific journal, but changed forever our understanding of space, time and entire cosmos. इसने स्पेस और टाइम के बारे में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट चेंज करके रख दिया. And transformed the name Einstein into a synonym for genius. जीनियस वर्ड का दूसरा नाम आइंस्टाइन था. ठीक है. 50 years after his death, Albert Einstein genius still remains. जब ये चैप्टर लिखा गया था उनकी डेथ हो चुकी थी 50 years after the death. So now I am going to teach you the chapter about Albert Einstein. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. He was born on 14th March 1879 in the Germany, in Ulm, without any indication that he was destined for greatness. उसने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि वो एक महानता अपने साथ लेके आए हैं. समझ रहे हो ना? On the contrary, इसके विपरीत, his mother thought Albert was a freak. Freak मतलब होता है word disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. यानी उसकी मदर, जब उसका जन्म हुआ, जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसकी मदर ने सोचा कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, मतलब ये दूसरों से कमज़ोर है. ये सब नॉर्मल बच्चे जो बिहेव करते हैं वैसा बिहेवियर नहीं है इसका. His mother considered that, Albert Einstein's mother. His head seemed much too large, और उसका सर था वो बहुत बड़ा था. किसका? Einstein's head. At the age of 2.5, जब वो 2.5 साल के हुए, Einstein still wasn't talking. तब तक उसने बात भी नहीं की, यानी बोला ही नहीं कुछ. जब वो 2.5 साल तक के हुए तो बच्चे क्या होता है 2.5 साल तक कुछ तो बोलने लगते हैं, चाहे तोतला बोलो. बट आइंस्टाइन वाज नॉट स्पीकिंग. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब वो बोला तो क्या बोला? ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. जब वो बोलना शुरू किया तो हर बार 2 बार बोलता था कोई भी चीज को. ठीक है. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, एंड यू नो Einstein did not know how to play with the other children and how to deal with them. He did not know. And his playmates called him brother boring. और उसके जो दोस्त, उसके साथी, उसको बोलते थे brother boring.
So the youngster played by himself much of time. वो खुद ही खेला. अब इसमें कुछ बातें हैं इसके बारे में, कुछ लोग बता रहे हैं आइंस्टाइन के बारे में. ओटो नेगेबियर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, जो एंशियंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन है, वो बताते हैं, टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइज एज ए लीजेंड. क्यों उसको लीजेंड बोलते हैं, उसने उस स्टोरी बताई उसके बारे में. बट द सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वाज लेट टॉकर. जैसे कि वो बताया था मैंने तुम लोगों को, वो बात लेट टॉकर था, बहुत देर बोला, 2.5 साल तक तो बोला ही नहीं, बोला तो भी दो बार रिपीट करता था. His parents were worried. उसके माता पिता बड़े चिंतित थे उसके बारे में. Why the boy is not talking? At last, at the supper table one night, एक शाम रात के खाने पे, he broke his silence to say, उसने अपनी साइलेंस, चुप्पी तोड़ी और बोला, the soup is too hot. Only one word, one sentence was spoken by him, that the soup is too hot. सूप है वो बहुत गर्म है. Everybody was surprised. यस, एक छोटा सा बच्चा इतना मतलब मैच्योर तुरंत दिखाई दे अपने आप को. ग्रेटली रिलीव हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स को बड़ा अच्छी संतुष्टि हुई, कम से कम बोलना तो सही. आज वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर. उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा भी कि आज से पहले आप बोले क्यों नहीं, व्हाई डिडंट यू स्पीक अ वर्ड. एल्बर्ट रिप्लाइड, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक था, यानी आई वॉज नॉट डिस्टर्ब. हर चीज़ मुझे टाइम से मिल रही थी, हर चीज़ बढ़िया तरीके से मिल रही थी, मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी. मैं बोलूँ क्यों बोलूँ मैं. अब थोड़ा मेरे को सूप थोड़ा हो लगा, हॉट लगा, तो मैंने बोल दिया. दैट वॉज ऑल्सो सरप्राइजिंग थिंग फॉर द पेरेंट. एंड एवरीबडी वॉज ऑल्सो दे हैप्पी. बट जब पूछा गया कि बोले क्यों नहीं, तो बोल रहा है कि आई वॉज सेटिस्फाइड. मुझे इस टाइम पे मुझे सभी चीज़ें मिल रही थी, मैं क्यों बोलूँ, व्हाई शुड आई कंप्लेन. सो ये उसके बारे में है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है. अब देखो, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उसको क्या पसंद है, मैकेनिकल टॉयज पसंद थे, मशीनों से प्यार था. लुकिंग एट न्यू बोर्न सिस्टर, ये देखो साइंटिस्ट के दिखा दिया ना लक्षण उसने, मशीनों से प्यार, मैकेनिकल टॉयज, खिलौनों, उनसे प्यार था. जब उसकी बहन का जन्म हुआ, न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, he is sad to have said, fine, but where are her wheels. बोला अच्छी बात है, but where are her wheels. इसके wheels कहाँ हैं, because he loves the toys, mechanical toys too much. Then his sister came in the world. जब संसार में आई उसकी बहन जन्म लेकर, तब उसने कहा कि इसके टायर कहाँ हैं, व्हील्स कहाँ हैं इसके. सो दैट वाज ऑल्सो सरप्राइजिंगली. ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein chose as a profession wouldn't matter. Once his father went to his school and headmaster informed his father कि this is not the matter of we can say thinking that कि कौन सा सब्जेक्ट इसको लेना है, because he will never make a success at anything. वो किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होगा. यानी स्कूल के हेडमास्टर ने आइंस्टाइन की रिपोर्ट दी. Einstein began learning to play the violin at the age of 6. जब 6 साल के आइंस्टाइन हुए, he started to learn violin because his mother wanted him to. क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो ऐसा करे. He later became a gifted amateur violinist. बाद में वो बहुत ही शानदार मनोरंजनक, अपना खुद का मनोरंजन करने के लिए अच्छे वॉयलिनिस्ट बने वो. मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और ये स्किल उन्होंने पूरी जिंदगी मेंटेन रखी. किन्होंने पूरी जिंदगी मेंटेन रखी, आइंस्टाइन ने. यानी उसके हेडमास्टर ने उसकी कंप्लेन की कि इसको कोई भी सब्जेक्ट दिला दो, ये सब में डफर है, ही वुड नॉट डू एनीथिंग एल्स इन हिज लाइफ. और फिर बताया गया कि उसकी मदर ने उसके अंदर एक आदत डाल दी थी, आइंस्टाइन की मदर ने, कि वो वॉयलिन सीखे, और वो 6 साल की उम्र में सीखने लग गया. And he also got mastery on that violin.
बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, वो बुरा स्टूडेंट नहीं था, ही वॉज नॉट ए बैड पीपल। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में गए और वहाँ हाई स्कूल में उन्होंने स्टार्ट किया। Where Einstein's family had moved when he was 15 month old, जब आइंस्टाइन 15 साल का था, 15 महीने का था, तब उसकी फैमिली ने वहाँ पे मूव किया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में उसने अच्छे मार्क्स लिए आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रिकमेंडेशन, मतलब होता है डिसिप्लिन, स्कूल का डिसिप्लिन उसे पसंद नहीं था। आइंस्टाइन इस चीज से नफरत करता था, वो मुझको पसंद नहीं था वो सब कुछ। एंड ऑफन डिक्लेयर्ड विद टीचर्स, अपने टीचर से भिड़ जाता था वो। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 ईयर्स के हुए, आइंस्टाइन फेल सो स्टिफ देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। आइंस्टाइन जब 15 साल के हुए तब इतना बोर फील किया उन्होंने, उसमें की घुटन सी महसूस हुई, तो आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ दी 15 साल की उम्र में। अच्छे स्टूडेंट थे, अच्छे मार्क्स लेते थे, लेकिन टीचर से भिड़ जाते थे, बिकॉज वो डिसिप्लिन पसंद नहीं था उनको, उनका थोड़ी ज़िंदगी उनकी ओपन खुली ज़िंदगी जीना चाहते थे, तो वो टीचर से झगड़ते रहते थे। एक टीचर बहुत पसंद थे उसको, वो मैथ्स टीचर, मैंने पढ़ा है दूसरी कहीं और जगह पे। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, और उस साल से पहले 15 ईयर्स पहले, एक साल से पहले उसके पेरेंट्स मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, एंड आइंस्टाइन को पढ़ने के कारण उसके रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफ़ी दूर देर तक डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी वो बातें हुई, उसके बाद में आइंस्टाइन ने अपनी स्कूलिंग वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जारी रखी। इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, और ये ऐसा शहर था जहाँ पे आइंस्टाइन और भी आज़ाद फील कर सकते थे म्यूनिक से ज़्यादा। स्विट्जरलैंड आ गए वो अपनी स्टडी करने के लिए। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंट थे वो। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में स्टडी करने की डिसाइड किया। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the all-rush mustache. लेकिन साइंस ही ऐसी चीज नहीं थी जो उसको अपनी तरफ प्रभावित करती थी, आकर्षित करती थी उन मूछे वाले बंदे को, और कुछ भी था जिसकी तरफ वो बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ। Got it? यानी एक ऐसी चीज जिसकी तरफ उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, हम साइंस के अलावा। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेविया मैरी, ए गर्ल whom he found in be clever creature। आइंस्टाइन को लगा कि यह लड़की बहुत ही क्लेवर है। दिस यंग सर्ब जो साइबेरियन जो होते हैं ना, सर्ब, इसीलिए had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree। क्योंकि वो स्विट्जरलैंड क्यों आई, क्योंकि स्विट्जरलैंड में गर्ल्स को एजुकेशन अलाउड थी। आइंस्टाइन सो इन हर एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, ठीक है, वो पैलेस्टाइन लोगों के प्रति थोड़ा, मतलब जो बंदे आर्ट और लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में पसंद नहीं करते ना, उनके अगेंस्ट टाइप में थे वो दोनों, तो वो लड़की भी ऐसे ही था। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड इन द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds, the couple fell in love, दोनों में प्यार हो गया, उस लड़की में और आइंस्टाइन में।
लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। चार लेटर्स लिखे एक दूसरे को। Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on the relatively to victorious conclusion। आइंस्टाइन ने उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया कि मैं बहुत खुश था उसके साथ, क्योंकि हम काम भी हमारा एक ही था और हमारा नेचर भी सेम ही था। In 19 at the age of 21, जब 21 साल के हुए, आइंस्टाइन was a university graduate and unemployed। उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली लेकिन जॉब नहीं था, जॉबलेस थे, वो बेरोजगार थे। ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट, तो उन्होंने क्या किया, टीचिंग असिस्टेंट की जॉब कर ली। गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर ए जॉब इन 1902। प्राइवेट लेसन्स दिए उन्होंने, पढ़ाए, और फिर 1902 में उन्होंने एक जॉब मिला एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बेर्न। पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने जॉब किया। While he was supposed to be assessing other people's inventions, वो क्या करता था, जो लोग इन्वेंशंस करते थे उनको असिस्ट करते थे आइंस्टाइन, हेल्प करना। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, लेकिन वो इसके साथ साथ अपने आइडियाज भी डेवलप कर रहे थे, अपने इन्वेंशंस के कारण जो के लिए जो कुछ भी था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर, जो डेस्क ड्रॉवर थी उसको बोलते थे मजाक में क्या, एट वर्थ ऑफ ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स की जो ब्यूरो है वो है मेरे पास। हु यूज्ड टू से दिस, आइंस्टाइन। यानी प्यार हुआ एक ऐसी लड़की के साथ जो उसी के विचारों की थी, दोनों हमें बातें होती थी। उसके बाद में उन्होंने अपनी क्या कर ली, 19 में वो 21 ईयर के हो गए और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, पर जॉबलेस थे। फिर 1902 तक उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में प्राइवेट लेसन्स दिए और फिर उनको जॉब मिला। क्या बोलते हैं आइंस्टाइन, ऑन वन ऑफ हिज फेमस पेपर ऑफ 1900 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो रिलेटिविटी की उन्होंने तो थ्योरी निकाली ना आइंस्टाइन की, उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। कह रहा है कि टाइम और डिस्टेंस सही नहीं होते, कभी भी फिक्स नहीं होते। अकॉर्डिंग टू विच टू परफेक्टली accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast। कह रहा है कि दो क्लॉक्स की जो टाइमिंग है वो कभी सेम नहीं मिलेगी, यदि उनको एक साथ भी मिला के चला दिया जाता है तो भी। टू द अदर वन ऑफ देम फ्रॉम दिस फॉलोड ही वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला। उसके इसी एग्जाम्पल से वर्ल्ड को सबसे फेमस फॉर्मूला मिला, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, E equals mc square। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, E का मतलब होता है एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट। इसके साथ उन्होंने एक बात और भी कही, क्या बोला, When you sit with that nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes। जब एक सुंदर लड़की के साथ आप 2 घंटे बैठोगे, that will be 2 minutes for you। When you will sit on a hot stove for a 2 minutes, अगर आप hot stove पे बैठोगे, it seems like 2 hours। That ये होती है रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने सस्ता और सिंपल एग्जाम्पल दे दिया। Got it? Understand? So that was the, we can say, lesson which we have discussed today. This is totally about Einstein, great Einstein, got it? And इसमें उसकी लाइफ के कुछ अनछुए पहलू हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि उनका बचपन, फिर उनकी जवानी, और फिर उसके एक दो जो प्रयोग जो उन्होंने किए हैं वो सब, गॉट इट।
which discussed these things about Einstein and about his love also, that he also fell love with a lady. और कुछ अजीबोगरीब बातें जैसे कि when he started to speak he only say one sentence that the soup is very hot, and when he was asked from his parents कि इतना लेट क्यों और कैसे, तो बोला हर चीज़ मेरे हिसाब से हो रही थी, वाई शुड आई स्पीक, मुझे क्या जरूरत थी बोलने की, मुझे सब कुछ टाइम पे मिल रहा था। बताओ ये भी कोई बात हुई। सेकंड, उसकी जो बहन का जन्म हुआ तब इतना प्यार करता था वो खिलौनों से, टॉयज जो मैकेनिकल होते हैं, कि जैसे उसको देखा तो बोला वेयर इज द व्हील, इसके पहिए कहाँ हैं। सर बड़ा, हेडमास्टर ने कहा कि नो इसको कुछ भी दिला दो ये फेल है, लेकिन आगे जाकर इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट tomorrow. Having any doubt, any clarity, you can ask me anytime. I am here for you forever.